خرچہ بھی اٹھائے گی، علاج بھی کرائے گی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لائنیں لگ گئیں، اور آج جو نمائندہ ہیں فہیم صاحب منسٹری آف کلچر کے میرے لیفٹ پہ کھڑے ہیں، یہ بلاول بھٹو صاحب نے ان کو بھیجا ہے. اور جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آج ہاسپٹل میں ہیں، یہ ان کے لیے صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے ان کی ہدایت پہ جو وعدہ تھا بلاول صاحب کا، تو وہ ان کی ہدایت پر یہ آئے ہیں. اور یہ آج شاکر شجاع آبادی صاحب کو ایک چیک پیش کریں گے حکومت سندھ کی طرف سے. اور چونکہ میرا اس وصیف سے تعلق ہے اور اس کی پسماندگی اور اس کی محرومی اور ناانصافیاں جو ہوتی رہی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی شاعری سے بھی نظر آئیں گی. اور اتفاق سے آج حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کا عرس بھی ہو رہا ہے. وہ بھی ایک صوفی پوئٹ تھے جنہوں نے اس علاقے کے مسائل کو اجاگر کیا تھا. ان کا بھی ایک بہت بڑا خطے میں نام ہے. میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ ان کا بھی عرس ہو رہا ہے، تو ہم ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں لوگ جو ہیں وہ خیال نہیں رکھتے، کیونکہ ہم اب مردہ پرست قوم ہو گئے ہیں. اور جب کوئی چلا جاتا ہے تو پھر اس کا خیال رکھتے ہیں، یا وہ بالکل بیمار ہو جائے تو پھر ان کا خیال آتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے والد مرحوم جو کہ نشتر کے اور مظفر گڑھ کا ڈی ایچ کیو اور ڈیرہ غازی خان کا ڈی ایچ کیو اور میاں والی کا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل انہوں نے بنیادیں رکھی تھی. آج بھی ان کے پلیکس جو ہیں وہ اویزہ ہیں. تو انہوں نے اپنے ایک کتاب لکھ رہے تھے، اور انہوں نے جس دن ان کی رحلت ہوئی اور اس دن ان کا ایک شعر تھا، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. تو اس لیے ان کو اعزاز زندگی میں ہی ملنا چاہیے. تو اب آپ کے لیے کوئی آپ نے سوالات کرنے ہوں. ہاں، جو ڈی ایل پی اور حکومت کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے اور جس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ ڈی ایل پی کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس پہ زیادہ لمبی بات میں نہیں کروں گا. یہ 1 سال سے یہ مذاکرات چل رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کو ابھی تک اعتماد میں نہیں لیا گیا کہ گزشتہ جو ٹاکس ہوئے تھے وہ کس بات پہ ختم ہوئے تھے، اور جو موجودہ جو کئی مرتبہ ٹاکس ہوئیں ان کا بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں. جب ٹاکس کی ہمیں ان کا کنٹینٹس کا نہیں پتہ، اس کے اوپر میں تبصرہ کیا کر سکتا ہوں. میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوں کہ مس ہینڈل ہوا ہے. آپ سر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر فلحال مزید کشیدہ ہوتی ہے تو کوئی کردار ادا کرے گی سر اس کا؟ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کو بحرانوں سے نکالا ہے. تو پیپلز پارٹی میں کیپیسٹی ہے، اور وہ رول آف لا کانسٹیٹیوشن کے مطابق انہوں نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالادستی پہ بھی قائم رہے ہیں اور آئین کے دائرہ کار میں بھی رہے ہیں، بلکہ آئین دیا بھی ہے اور آئین کو بحال بھی کیا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کین پلے اے ویری میجر رول ان اسٹیبلائزنگ the situation in the country. پی ڈی ایم میں واپسی کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کا اور پی ڈی ایم کی بنیاد جو رکھنے والے تھے وہ بلاول بھٹو صاحب تھے. سب سے پہلے انہوں نے تمام کمبائنڈ اپوزیشن کو اپنے گھر مدعو کیا اسلام آباد میں. پھر انہوں نے ہوسٹ کیا ہوٹل میں، اور پھر پی ڈی ایم کو نام دینے کے لیے پھر وہاں تجاویز آئیں
को PDM रखा गया, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और फिर उसका बयानिया बनाया गया। तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ हम मिलकर PDM के साथ बहुत सी फतवात हमने की, बहुत सी विक्ट्रीज हमने हासिल की। हमने ज़िमनी इलेक्शन जीते और हमने सेनेट का इलेक्शन भी जीता, और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी अगर आप देखेंगे तो अगर नंबर गेम के मुताबिक हम जीत चुके थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ PDM ने मिलकर बहुत फतवात की। तो बहरहाल पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हमारा मौक़िफ़ वही है जो उस वक्त बयानिया बिलावल भुट्टो साहब ने और PDM के कायदीन ने मिल के किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए और इकोनॉमिक राइट्स के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए और फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए और आवाम की जो मुश्किलात हैं उनका पहले भी हम बात करते थे। आज भी नेशन वाइड कॉल पीपल्स पार्टी ने दी हुई है। आज पूरे मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महंगाई के ख़िलाफ़ आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए आज भी एहतजाज पूरे मुल्क में हो रहा है। हुकूमत जो है अदम एतमाद से दोबारा चेंज हुई है। देखें, जो भी आईनी तरीके के साथ जो भी काम होगा हम उसकी सपोर्ट करते हैं। गैर आईनी तरीका नहीं है, अदम एतमाद जो है वो गैर आईनी काम नहीं है, और किसी का मुंतखब होना वो भी आइन के मुताबिक है। PDM के प्लेटफॉर्म पे तो सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन आपने इशू की बात की तो महंगाई एक कॉमन इशू है, तो उसके ऊपर आप अपोजिशन के साथ क्यों नहीं मिलकर मुजाहरे कर रहे हैं? देखें, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वेदर इट इज़ नेशनल असेंबली और सेनेट, हमारा मौक़िफ़ एक है, और उसके लिए हम यक आवाज़ होकर जो भी इस वक्त मसले हैं, या EMM का है, या ओवरसीज़ वोटिंग का है, या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का है, और जो ये PDM में जो कदगने मीडिया के ऊपर लगाई जा रहे हैं, उसके ऊपर हमारी यक ज़ुबान है। हम एक हमारा मौक़िफ़ है और वही सड़कों पे हो रहा है। तो इसलिए हमारा जो मौक़िफ़ है वो है अवाम के साथ। हम अवाम के साथ हैं, और अवाम की जो तकलीफ़ें हैं वो हम उसकी तकलीफ़ों में हम खा वो अपोजिशन में कोई जमात हो जो अवाम की बात करेगा, हम उनके साथ हैं। लास्ट सवाल ये है कि DLP के मुतालबात हुकूमत ने क्या वादा किया, वो तो आपने कहा हमें नहीं पता, लेकिन जो DLP के मुतालबात हैं वो मंजर आम पर आ चुके हैं, तो क्या उनका जो फ्रांस का सफीर निकालने का और देखें, पहली बात ये है कि पहली तो बात ये है, हमें इत्मीनान में नहीं ही लिया कि इन्होंने क्या उनसे बातें मानी जो प्राइम मिनिस्टर के लिए कहा गया कि उनको पता ही नहीं है कि ये बात मानी गई या नहीं मानी गई। तो इसलिए जब उनके मुतज़ाद बयानात हैं, या कभी कहते हैं कि वो कामयाब हो गए टॉक्स और कभी कहते हैं नाकाम हो गए टॉक्स, उसके बाबत मैं क्या कह सकता हूँ। तो इसलिए जब हमें इत्मीनान में लिया जाएगा, नेशनल एक्शन प्लान के लिए हमने पहले भी कहा था, इन कैमरा भी कहा था कि हमने जो बनाया है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। देखें, मैं आपसे एक गुजारिश करूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और PDM का जो बयानिया था उस पे एक शिक ये भी थी कि हम अदम एतमाद सेंटर में भी, अदम एतमाद पंजाब में भी हम ये ऑप्शन हम एक्सरसाइज करेंगे, मगर PDM में जो फैसले करने की बात थी वो कंसेंसस के साथ थी कि अब इत्तफाक राय के साथ अगर तमाम पार्टियां मुत्तफिक हों तो हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। देखें, मुझे नहीं पता कि चूँकि मैं सेनेट के बाद बहुत सारे और इश्यूज़ में मैं एंगेज हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात आएगी तो पीपल्स पार्टी उसको कंसीडर करेगी। अच्छा, ये देखें,
ये जो फ़हीम साहब आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से, ये शाकिर शुजाबादी साहब के लिए ये 1 मिलियन का चेक लेकर आए हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ये उनको पेश करेंगे। साहब बोल तो बंद कर दिया गया है। देखें, हम फ्रीडम ऑफ प्रेस के हक़ में हैं और हम चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए और हम कदगन के हक़ में नहीं हैं और ड्रैकोनियन लॉज और काले कवानीन के हम हक़ में नहीं हैं। हमने जब हुकूमत में आए थे हमने काले कवानीन ख़त्म किए थे और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टू पीपल हमने इंश्योर किया था, इसलिए हम आज़ादी सहाफ़त के हक़ में। अच्छा गिलानी साहब, इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन पर आप एतमाद करते हैं या मुखालफत करते हैं? लेकिन उसकी लुक आफ्टर सेफ्टी नहीं होती, इसके लिए भी कुछ स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे? किसकी नहीं हुई? जो उनके इलाज के लिए आपने काफी इनकी हेल्प की थी अपने दौरे। देखें, वो उनको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं, वो कौम को हेल्प कर रहे थे, वो कौम की आवाज़ थे, वो सराइकी खित्ते की आवाज़ थे और ये नाइंसाफ़ी हुई है कि वादा खिलाफी है कि 3 महीने का वादा करके आप सूबा ना बना सके, तो इसलिए लोग यहाँ फिर महरूम हो गए हैं। तो हम इंशाल्लाह अगर हम परमानेंटली आएंगे तो हम तमाम अदीब हों या शायर हों या दानिश्वर हों, हम उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनके लिए एक जामे पॉलिसी बनाएं। शुक्रिया भाईजान।